Am I audible? Past tense, am I audible or not? Okay. So, good afternoon, and this is your physics class. We have covered OJ means has started this year. First attempt is starting from tomorrow. So we have covered 12 main important topics. First five we have covered electrostats, current, electricity, AC, alternate EMI, and magnetism. We have completed this, and with Sandeep sir, you are taking optics, wave optics, and ray optics. So these are the major portions from which you can expect questions from class 12th. Now we will start revising class 11 till your attempt. And this is one of the major topic class. We are taking class 11th revision of most important topics from where you can expect at least 2 or 3 questions. ठीक है हम लोग important topics क्या करने वाले हैं रिवाइज करने वाले हैं for this attempt. And then again after this attempt we'll take the leftover topics of class 12th and the main topics of class 11th afterwards. Class 11th revision, and we are starting with one of the main and major topic of class 11, that is rotational dynamics. Rotational motion, rotational dynamics. This is the one of the most important topic for the mains as well as for the advanced. In mains, you can expect at least 2 to 3 questions from this chapter. At least 3 questions, at least 2 questions तो expect कर सकते हो आप इस chapter में से. So we will be starting rotational motion today. Rotational motion. अब तक हम body का motion describe कर चुके हैं. What is motion of a body? Whenever a body whenever body changes its position with respect to time, that is said that the body is in motion. अगर body क्या करती है change करती है time t equals to 0 से time t equals to t तक, हमने इसे क्या कहा था, हमने motion कहा था. And with respect to some reference frame, हमें reference frame पता है, with respect to some reference frame अगर body with respect to इसकी position change होती है with respect to time में क्या कहते हैं हम, body is in motion. And इसका हम लोगों को cause भी पता है कि body motion में किसकी वजह से आती है, due to force. body जिस motion body का force क्या करता है, force is the effect that causes the changes in the body. रेस्ट पे है तो वो मोशन में चली जाती है, मोशन में है तो वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. दिस इज आवर फोर्स. ठीक है, अब तक हमने कौन से मोशन पढ़े थे? वी हैव स्टडीड ट्रांसलेशनल मोशन, दैट अ बॉडी इज डूइंग लीनियर मोशन. क्या करती है वो, लीनियर मोशन करती है. एंड वी हैव डन सर्कुलर मोशन. हमने की बॉडी क्या करती है, सर्कुलरली मूव करती है. इस पे क्या लगता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. अब हमारे पास एक बॉडी है and we are taking special type of we have continuous mass bodies. ठीक है, continuous mass bodies हैं और ये कैसी bodies हैं, rigid bodies हैं. कैसी bodies हैं ये, rigid bodies हैं. अब हमें क्या करना है, इस body को rotate कराना है around an axis. If this is axis and I want to rotate this body, अगर मेरे पास ये body है और ये axis है, मुझे इसको क्या कराना है, रोटेशनल मोशन कराना है. मुझे क्या कराना है, इस बॉडी को रोटेशन कराना है. इसको क्या कराना है, पूरी बॉडी क्या करे, रोटेट करे. उसको क्या बोलते हैं हम, रोटेशनल मोशन कहते हैं. रोटेशनल मोशन में पूरी, अगर आई हैव अ रिजिड बॉडी एंड दिस इज माय एक्सिस रोटेशन, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड आपको क्या कराना है, पूरी बॉडी को मूव कराना है. एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज माय रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी क्या होता है, यहाँ पे क्या है मेरे पास, कॉन्टिन्यू मास बॉडी है. यहाँ पे बहुत सारे क्या है मेरे पास, पार्टिकल्स जिसके क्या है, मासेस. एंड इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है r0, ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है फॉर अ रिजिड बॉडी. आप कितना भी क्या करो, एक्सटर्नल प्रेशर लगा दो, हम प्रेशर भी लगाएंगे इसको, ऐसे कंप्रेस करते हैं, एलोंगेट करते हैं, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा. दैट इज माय रिजिड बॉडी. अगर ये बॉडी को मैंने क्या कराया, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड मुझे क्या कराना है, इसे मूव कराना है, तो ये बॉडी क्या करेगी, इसको हम क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन. एंड रोटेशनल मोशन में एवरी पार्टिकल इन रोटेशनल मोशन क्या करता है, सर्कुलर मोशन. ये क्या करेगा, इस एक्सिस के अराउंड डिफरेंट एक्सिस में क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा. जैसे अगर आई एम टेकिंग दिस पार्टिकल, तो ये r डिस्टेंस पे है,
ये क्या करेगा, आर रेडियस पे क्या करेगा, सर्कुलर मोशन. द होल बॉडी इज डूइंग रोटेशनल मोशन and this body is doing circular motion. Every particle of rigid body will do circular motion whenever body will go under rotational motion with angular velocity omega. इनकी भी angular velocity कितनी होगी, इनकी भी angular velocity क्या होगी, हर body की angular velocity क्या होगी, ओमेगा. ओमेगा क्या होगी, सबकी एंगुलर वेलोसिटी होगी. ये तो क्या है हमारा रोटेशनल मोशन. अब इस रोटेशनल मोशन को पढ़ने के लिए हमें वेरियस टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली. एंड फर्स्ट टॉपिक वी हैव मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. फर्स्ट वी हैव मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, नेक्स्ट वी हैव इज टॉर्क, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम, देन देयर कंजर्वेशंस, देन रोलिंग मोशन. ये सारे टॉपिक्स हम वन बाय वन कवर करेंगे. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज इनर्शिया. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, देखो हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी रोटेशनल मोशन कैसे करेंगे, एनालॉगस टू ट्रांसलेशन मोशन पढ़ के स्टडी करेंगे, सो दैट आपको याद रखने में क्या रहे, इजी रहे. अगर मेरे पास क्या है, मास m की एक बॉडी है, हम इस पे क्या लगाते थे, एक फोर्स लगाते थे, एंड द बॉडी, इसको क्या मिल जाता है, एक्सेलरेशन मिल जाता था. एंड आई नो F इज इक्वल्स टू m. दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या थी, एक्सेलरेशन वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास m. जितना ज्यादा हायर मास होगा उससे क्या मिलेगी, बहुत कम एक्सेलरेशन मिलेगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बहुत कम चेंज होगी. और अगर वो रेस्ट में थी तो वो बहुत कम वेलोसिटी से क्या करेगी, मूव करना स्टार्ट होगी. एक्सेलरेशन वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माय मास. और हम इसको क्या बोल सकते हैं, इनर्शिया. मास का मेजर क्या था, मास का मेजर था. इनर्शिया का मेजर क्या था हमारे पास, मास. ये क्या था, रेजिस्टेंस ऑफर्ड. ये क्या था मेरे पास, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट. जो स्टेट चेंज, अगर ये रेस्ट पे थी, मैंने फोर्स लगाया, वो क्या करना चाहते हैं हम, इसकी स्टेट चेंज करना चाहते हैं. हम स्टेट चेंज कर रहे हैं, तो वो कौन, यहाँ जो हमें बॉडी है वो क्या प्रोवाइड करती है, एक इनर्शिया प्रोवाइड करती है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है टू चेंज इट स्टेट. वो क्या था हमारा, इनर्शिया. वैसे ही अगर मुझे एक रिजिड बॉडी को क्या कराना है, मुझे रिजिड बॉडी को ऐसे मूव कराना है, इट वाज इनिशियली एट रेस्ट, आई वांट टू मूव दिस बॉडी, तो मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स के एनालॉगस मुझे क्या लगाना पड़ता है, एक टॉर्क लगाना पड़ता है. मींस हम अभी टॉर्क को डिटेल में स्टडी करेंगे. टॉर्क इज नीडेड टू मूव अ बॉडी इन रोटेशनल मोशन. मैंने इसमें क्या किया, टॉर्क लगाया. टॉर्क लगाने से इसमें क्या आई, एंगुलर एक्सेलरेशन आई. एंगुलर एक्सेलरेशन हमें पता है क्या होता है, चेंज इन इट्स एंगुलर वेलोसिटी और d2 थीटा बाय dt स्क्वायर. ठीक है, थीटा क्या है मेरा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ये मेरा सर्कुलर, ये थीटा, पार्टिकल वाज हियर, ये क्या कर रहा है, सर्कल पे मूव कर रहा है. तो टाइम t में इसने क्या किया, थीटा ट्रैवल किया. थीटा इज माय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओमेगा क्या होता है, चेंज इन थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम t में इसने कितना एंगल चेंज किया. एंड अल्फा इज मेरा एंगुलर वेलोसिटी कैसे चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये हमने क्या करा था, सर्कल मोशन में, वी नो दिस. अब बॉडी को क्या चाहिए, अब ये भी क्या करेगी, ये भी मुझे इनर्शिया, मुझे ये क्या, रेजिस्टेंस. ये बॉडी भी रोटेशनल मोशन में जाने के लिए हमें क्या कर रही होगी, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही होगी. उस रेजिस्टेंस को हमने क्या बोला, हमने बोला आई, दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. सेम एनालॉगस टू मास m हेयर, इधर जो इनर्शिया प्ले करता है वही मेरा यहाँ क्या करेगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रोल प्ले करेगा. ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज एनालॉगस क्वांटिटी टू अ inertia. It will play the same role जो inertia play करता था, जो हमें resistance provide करता था to change its original state. तो यहाँ भी हमने देखा, हम देखेंगे ये क्या है, टॉर्क अल्फा. जितना ज्यादा कोई बॉडी जितना ज्यादा इनर्शिया प्रोवाइड कर रही होगी, उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, उतनी ही कम होगी. और जो बॉडी कम इनर्शिया प्रोवाइड कर रही होगी, उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा. मतलब अगर इस बॉडी को रोटेट कराने के लिए मुझे अल्फा इनर्शिया ज्यादा प्रोवाइड करती है, तो उसकी कम आएगा. इनर्शिया कम है तो ये जल्दी रोटेट कर देगी. तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज एनालॉगस टू माय इनर्शिया दैट प्लेज द सेम रोल जो हमारा इनर्शिया करता है ट्रांसलेशनल मोशन में. ठीक है, इनर्शिया क्या था, इनर्शिया देखो फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं. फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ डिफाइन इनर्शिया. तो ये मेरा एक फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं है, इसका मेजर कौन होता था,
मेजर क्या होता था, इसको हम कैसे मेजर कर सकते थे, मास के साथ। हम इसको कैसे रिलेट करते थे, मास से रिलेट करते थे। जिस बॉडी का मास ज्यादा, उस बॉडी का क्या होगा, इनर्शिया ज्यादा होगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का किसी उसकी एक्सिस के अराउंड क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वो किस किस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिंगल पार्टिकल डिफाइन कर देते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट पार्टिकल, ऑफ पॉइंट पार्टिकल। इसका मेजर क्या था, हमारा मास। अगर मेरे पास ये है मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड ये है मेरा मास m, मुझे इसको क्या कराना है, इसके अराउंड रोटेट कराना है, विच इज एट डिस्टेंस r। पार्टिकल एक पॉइंट पार्टिकल है, मास m का, जो एक्सिस से क्या है, r डिस्टेंस अवे है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा मेरा, m r²। This is the formula for a moment of inertia for a point particle। किस किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो, मास पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे ही मैं अपनी एक्सिस चेंज करूंगी, इफ मैं एक्सिस यहाँ ले आई, तो ये क्या होगा, इसका डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। एंड ये एक चीज, एक क्वांटिटी और पे डिपेंड करता है, दैट इज मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास डिस्ट्रीब्यूशन, ये अभी हम कॉन्टिन्यूस बॉडीज के लिए करेंगे, तो हम यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन पे कैसे डिपेंड करता है, ये हमें समझ आएगा। मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया, मास पे डिपेंड कर रहा है, जैसे मास इंक्रीज होगा मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, मास डिस्ट्रीब्यूशन कि एक्सिस के अराउंड मेरे पार्टिकल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ये उस पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ऐसे हम एग्जांपल लें, अगर मेरे पास क्या है, ये बॉडी है, इसका मास कितना है, 2 kg, एंड ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूर है, 2 meters अवे है, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, it's mr²। तो 2 into 2², that is 8 kg meter square। ये क्या है मेरा, दिस इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसे ही अगर मुझे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट आई एम टेकिंग डिस्क्रीट बॉडीज। पहले मैं क्या ले लेती हूँ, डिस्क्रीट बॉडीज कि हमारे पास बहुत सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, पर डिस्क्रीटली क्या है ये, यहाँ पे है। जैसे अगर मैंने ले लिया, there have 4 particles each of mass n and they are placed at the vertices of a square of side l। साइड एल पे मैंने रख दिया, तो आई हैव टू कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू दिस एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू ओ। ये ओ वाली एक्सिस से, जो एक्सिस जा रही है, एक्सिस अंदर की टूवर्ड्स जा रही है, उससे मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मेरा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे देंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, इट वुड बी समेशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। सब सारे पार्टिकल्स का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होगा, वो समेशन होगा। तो इधर मैं क्या लिख सकती हूँ, कैन आई राइट दिस एज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पार्टिकल। क्या हो जाएगा ये, m1r1², m2r2², m3r3² एंड m4r4²। ये हो गया, ठीक है। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, r क्या होगा, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस। ये एक्सेस से कितना डिस्टेंस है, ये r कितना है, सबके लिए देखो सेम r है, सारे क्या है मेरे सेंटर से सेम डिस्टेंस। r मुझे कैलकुलेट करना है, ये कितना है, ये पूरी एक्सेस अगर मुझे लिखनी है, ये क्या है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। डायगोनल क्या होता है, √2l। तो r क्या हो जाएगा मेरा, √2l डिवाइडेड 2, दैट इज l/√2। तो यहाँ पे आई कैन राइट, इफ आई वांट टू सॉल्व, masses are the same and radius are same, तो मैंने क्या लिख दिया, 4 into mr², 4m and l/√2²। कितना आ जाएगा, 2ml² would be your answer। ठीक है, हमने किस एक्सिस के अराउंड निकाला है, इस एक्सिस के अराउंड। इफ आई गिव यू, आस्क यू टू सॉल्व मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड दिस एक्सिस, आपको इस एक्सिस के अराउंड, हमारा ये क्या है, दिस इज नाउ, दिस इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड
को मैं मास भी दे देती हूँ, मास इज 2 kg एंड एल इज 1 मीटर, एल इज 1 मीटर। तो आपको इस एक्सिस के अराउंड इस बॉडी का जो डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, आई हैव 4 पार्टिकल्स 1 2 3 एंड 4, इन पार्टिकल्स का आपको क्या निकालना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। यूज दिस फॉर्मूला। आपको एक पार्टिकल का पता है, सिंगल पार्टिकल का कितना होगा, mi/r² एंड ऐसे सारे पार्टिकल निकाल के क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है फॉर द डिस्क्रीट सिस्टम। तो इसका कितना होगा, अगर इस एक्सिस के अराउंड, अराउंड दिस एक्सिस, ब्लू वाली एक्सिस के अराउंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अभी हमने किसके अराउंड निकाला था, इस ओ वाली एक्सिस के अराउंड निकाला था। अब मुझे क्या करना है, इस ब्लू एक्सिस के अराउंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर चाहिए। कैलकुलेट एन आंसर, राइट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। Calculate moment of inertia of this body. हमारे पास 4 बॉडीज हैं, चारों का मास है 2 kg, एल डिस्टेंस पे रखी हुई है। इस एक्सिस के अराउंड आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। देखो, वी नो फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे लिखते हैं, सबका सम लिखेंगे। तो वी हैव 4 बॉडीज, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर एंड m4 r4 स्क्वायर। m इज द मास एंड r क्या है, उसका एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, उस पार्टिकल का एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। सो चारों पार्टिकल्स का मास क्या दिया है, देखो चारों पार्टिकल का मास हमने सेम रखा है, m3 m4, इट्स 2 kg। मास क्या है चारों का, सेम है। एंड देखो फर्स्ट पार्टिकल क्या है, फर्स्ट पार्टिकल तो मेरा एक्सिस पे ही है, फर्स्ट पार्टिकल कहाँ आ गया, एक्सिस पे ही आ गया है। तो मेरा कितना डिस्टेंस होगा, 0। r2 कितना होगा, 0 मीटर्स एंड r3 एंड r4 दोनों पार्टिकल्स कितने डिस्टेंस पे हैं इस एक्सिस से, दे आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। क्या हो जाएगा, 1 मीटर। तो हम इसमें पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट 0, सेकेंड 0, ml² प्लस ml², कितना हो जाएगा, इसका आंसर भी आएगा 2ml² एंड पुटिंग द वैल्यूज, सारे मैग्नीट्यूड वैल्यूज हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 kg मीटर स्क्वायर। 4 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सिंगल पार्टिकल का देखा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए क्या करेंगे, सबका समेशन कर देंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। If I ask you to solve now, I want answers. So this is one of the most important topic. Rotational dynamics is one of the most important topic. And inertia से अगर एक question आता तो it would be easy to handle. हम आगे torque पे भी जाएंगे, dynamics पे भी जाएंगे, but this is the first part. आपको mass के analogous, आपकी body मास को लेते थे कि मास m बॉडी को मूव कराने के लिए फोर्स लगाया, इसमें एक्सेलरेशन आया F = ma। अब मुझे एक बॉडी को रोटेट कराने के लिए मास नहीं नीडेड है, मुझे क्या नीडेड है, उसकी एक्सिस के अराउंड उस पे इसको मुझे रोटेट कराना है। तो उसका कौन, इनर्शिया और मास का कौन होता है यहाँ पे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपको सबसे पहली क्वांटिटी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। तो अब सिंगल पार्टिकल का फॉर्मूला देखो, हम लोगों ने सिंगल फॉर अ सिंगल पार्टिकल डायरेक्ट फॉर्मूला है, मास क्या है उस बॉडी का इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, mr²। यहाँ पे ये हो गया एंड देन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे तो मेरा समेशन ऑफ मासेस हो जाएगा। हम जितने मासेस, मास r² प्लस m2 r², m3 r², ऐसे सारे पार्टिकल्स का मास ऐड कर देंगे। ये था हमारा डिस्क्रीट बॉडीज। नाउ इफ वी हैव कॉन्टिन्यूअस बॉडीज,
अगर हमारे पास कैसी बॉडीज आ जाती हैं, कॉन्टिन्यूस बॉडीज आ जाती हैं, कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम, कि हमारे पास क्या है, ये पूरा ऐसे कॉन्टिन्यूस बॉडी है, बहुत सारे मासेस हैं, बहुत सारे क्या है यहाँ पे मासेस, और ये क्या है, ये हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन गिवन है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अब क्या करना है आपको, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे करेंगे, अभी हमने क्या किया, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालते हैं, समेशन MI/RI², मतलब हर एक पार्टिकल का हम क्या लिख लेते थे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेते थे। दिस इज फॉर द दिस इज फॉर द डिस्क्रीट सिस्टम। अब यहाँ पे तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, एंड ये अगर मैंने क्या किया, और सबका मास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम क्या करेंगे, अगर टोटल मास है में मैंने क्या किया, एक पॉइंट पार्टिकल में क्या हम क्या करेंगे, कंसीडर अ पॉइंट पार्टिकल, पॉइंट मास एक कंसीडर करेंगे, पॉइंट मास डिस्टेंस पे है, ये डीएम डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे है, लेट्स से इट्स एट अ डिस्टेंस आर, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, डीएम R²। ऐसे ही बहुत सारे पार्टिकल्स डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे हैं, टोटल के लिए समेशन करना है, बट देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल, तो समेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा मेरा, डीएम R²। नाउ दिस इंटीग्रेशन विल बी डिपेंडिंग ऑन द size of shape and साइज ऑफ द बॉडीज, ये किस पे डिपेंड कर रहा होगा, हमारी बॉडीज की शेप एंड साइज पे, कि हम कैसे इंटीग्रेशन करेंगे कि सारे के सारे मासेस क्या करें, हमारा कंट्रीब्यूट कर दे टुवर्ड्स द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सबका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाना चाहिए, कैलकुलेट हो जाना चाहिए। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बॉडीज, जिनका मास क्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है इन वेरियस डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, तो हम लोग अब डिफरेंट डिफरेंट रिजिड बॉडीज लेते हैं, उनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मैं दो डेफिनेशन करा देती हूँ, एंड देन यू जस्ट हैव टू रिमेंबर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पर्टिकुलर टू अ डिफरेंट बॉडी, उस बॉडी का आपको आंसर याद करना है कि क्या मेरा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे। जैसे अगर मैं लेती हूँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, क्या ले लें, एक यूनिफॉर्म रॉड है हमारे पास, तो उसका मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर ये मेरे पास क्या है, एक रॉड है, ठीक है, ये इसमें सारा का सारा मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मेरा लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये क्या है, अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा थिकनेस दिखा दिया, बट थिकनेस इज वेरी मच लेस, सारा मास क्या है, लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया में नहीं। ये क्या लेंथ है इसकी, लेंथ इज L, मास M is uniformly mass M is uniformly distributed along length L। टोटल लेंथ L के अंदर क्या है, मेरा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं लेमडा डिफाइन कर देती हूँ, इट्स माय लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। तो यहां से अगर आपको ये मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन दे दिया, मुझे इस एक्सिस के अराउंड, इस एक्सिस के अराउंड क्या चाहिए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या कंसीडर करोगे, मेरी रिजिड बॉडी है, मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सबका डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट, तो मैं क्या करती हूँ, एक एक्स डिस्टेंस पे एक पार्टिकल क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया, जिसकी थिकनेस कितनी है, जिसकी लेंथ कितनी है, dx, और इसका क्या मास हो जाएगा, dm। ये मैंने क्या किया, वी हैव consider a point mass dm of length dx at distance x from axis। एक्सिस से क्या है, x डिस्टेंस अवे लिया, तो उसका कितना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, हमारा dm x², एंड मेरा dm हो कितना जाएगा, देखो यहां से आई कैन राइट dm कितना हो जाएगा, मेरा लेमडा इंटू dx, कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू dx की टोटल मास m में कितना लेंथ है, l, तो dm में क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास dx लेंथ है, लेंथ l के पास कितना है, मास m, तो dx लेंथ के पास कितना हो जाएगा, m/l इंटू dx, यही कितना है, मेरा लेमडा dx है।
ये डिस्ट्रीब्यूशन मैंने लिख दिया। तो टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे लिखना है तो क्या होगा, dm x स्क्वायर। ये हो गया मेरा टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो मुझे इंटीग्रेट करना है, कैसा है, मुझे लेंथ ऐसे इंटीग्रेशन लिमिट्स कर डालनी है कि मेरे सारे के सारे क्या आ जाए, सारे के सारे मास कंट्रीब्यूट कर दे टुवर्ड्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वो कितना होगा, देखो ये क्या है, इससे लास्ट वाला पॉइंट मास कितना है, L/2 पे है, ये वाला प्लस L/2 पे। तो सारे के सारे हम इंटीग्रेशन अगर क्या करेंगे, -L/2 से L/2 तक करते हैं, तो हमने क्या कर दिया, सब कवर कर दिया। तो dm क्या लिख देते हैं, ml इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -L/2 से L/2 तक, एंड m/l कॉमन, एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x³/3 -L/2 टू L/2। हम इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे अगर, would be ml square by 12। मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू दिस एक्सिस, जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही थी, इसका सेंटर कहाँ करेगा, सिमेट्रिकल पॉइंट इसके सेंटर पे लाया करता है, उससे अगर जो एक्सिस पास करेगी उसके अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ml² by 12। हमने एक रिजिड बॉडी यूनिफॉर्म रॉड लिया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास कितना आया, देखो ml²/12। तो हम 3 स्टेप्स करने हैं आपको हर रिजिड बॉडी के लिए। यू डोंट हैव टू रिमेंबर द डेरिवेशंस फॉर द जेईई मेंस एग्जाम, यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूलाज फॉर एवरी रिजिड बॉडी। आई विल बी राइटिंग देयर फॉर्मूलाज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शियाज, बट यू शुड नो कैलकुलेशन हुई कैसे है। एक हमने पॉइंट पार्टिकल कंसीडर किया, एक्सिस से एक्स डिस्टेंस अवे, उस पॉइंट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा, एंड देन आई इंटीग्रेट फॉर द होल बॉडी, मैंने पूरी बॉडी के लिए मोमेंट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। In the starting I said moment of inertia depends on the mass and length from the center of axis, center of rotation के around इसकी क्या क्या length होगा, and I write, and also I write down that it depends on the mass distribution। ये mass distribution पे भी क्या करता है, depend करता है। तो mass distribution मतलब हमारी axis के around कैसे mass distributed है। अगर अगर मैंने मास m ले लिया तो सारे मासेस क्या है, अब लेंथ मैंने इंक्रीज कर दी, पहले क्या थे मेरे हाईएस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये दो बॉडीज प्रोवाइड कर रही थी, ml²/4। अब मेरी ये वाली बॉडी क्या कर रही है, ml² प्रोवाइड कर रही है। जैसे ही एक्सिस चेंज करी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारी बॉडीज का क्या हो रहा है, डिफरेंट। अब मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हो अराउंड दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ भी क्या है, मास m है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग लेंथ l, तो मेरे dm क्या हो जाएगा, lambda dx हो जाएगा। I'll again consider one point particle of length dx at a point x। फिर से इसके लिए देखो क्या हो जाएगा, di would be dm into x square, that means m/l x² dx। टोटल के लिए क्या हो जाएगा, टोटल वुड बी डी आई, कहां से कहां तक। अब देखो आप सारे मासेस कहां से, एक तो खुद यही पे है एक्सिस पे ही, एंड फिर सारे के सारे मासेस कहां तक जा रहे हैं, एल तक जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा ये ml x² dx 0 से l, ml इंटीग्रेशन ऑफ x² x³/3 0 to l, कितना हो जाएगा ml²/3। देखो सेम यूनिफॉर्म रॉड का जिसका पहले मैंने निकाला था, इसका क्या आया, अराउंड द कॉर्नर एक्सिस। कॉर्नर पे अगर मैं एक्सिस लिख देती हूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, ml²/3। कितना हो गया, ml²/3 हो गया। एंड अगर मैं से पास करके घुमा रही थी, क्या हो रहा था, ml²/12, क्या था, ml²/12। तो जैसे ही हमने एक्सिस चेंज करी, एक्सिस के अराउंड उस बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ, तो ये क्या हो गया, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो चुका है। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट डिपेंड्स ऑन द mass distribution and the distance from the axis for the point particles। तो ये क्या है, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज ऑफ डिफरेंट बॉडीज, कॉन्टिन्यूस एज वेल एज रिजिड बॉडीज। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कैलकुलेशंस। अगर हमें क्या करनी है, कैलकुलेशंस करनी है
मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर डिफरेंट बॉडीज। यू कैन रिमेम्बर नाउ आई एम मेकिंग अ चार्ट। अगर मेरे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म रिंग है, एक क्या है, यूनिफॉर्म रिंग है ऑफ मास m एंड रेडियस r। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सारा मास हमारा रिंग के सर्कमफेरेंस पे अवेलेबल है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ यूनिफॉर्म रिंग इज mr। कौन सी एक्सिस के अराउंड लिख रही हूं मैं, ये सेंटर ऑफ मास के जो थ्रू पास करती है, सेंटर ऑफ मास के थ्रू जो एक्सिस पास करती है ये उसके अराउंड है। ठीक है, ये क्या है, यूनिफॉर्म रिंग का, यूनिफॉर्म रिंग। सेकेंड वी हैव अ डिस्क। अगर मेरे पास डिस्क है ऑफ मास m, मास m है, रेडियस r है। अब सारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है हमारा, एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारा मास। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर एक्सिस कितना हो जाता है, mr² 2 हो जाता है। कितना हो जाता है, mr²2। थर्ड, अगर क्या है मेरे पास, होलो सिलेंडर है, वी हैव अ होलो सिलेंडर दैट मास कहाँ है, अगेन सारा मास मेरे सर्कमफेरेंस इसके एक्सिस पे, सारी की सारी, ये क्या है मेरे बाहर की साइड सारा मास है, होलो सिलेंडर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम mr²। एंड अगर मेरा क्या है, इफ आई हैव अ सॉलिड सिलेंडर, मास क्या है हमारे, एरियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दिस, देन वी हैव अ होलो स्फेयर। अब हम स्फेयर की बात कर रहे हैं, दैट इज कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। सारा मास हम एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर अंदर से होलो है, बाहर पूरा विड्थ उसमें है, तो इसका क्या होता है हमारा 2/3 mr²। एंड अगर मैं ले लेती हूँ एक सॉलिड स्फेयर, एक सॉलिड स्फेयर, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 2/5 mr²। सो दीज आर सम बेसिक फॉर्मूलाज। और आपने अभी एक यूनिफॉर्म रॉड का तो देख ही लिया था, यूनिफॉर्म रॉड है ऑफ मास m, लेंथ l, इसकी सेंटर एक्सिस। बट ये ध्यान रखना, ये सारे के सारे कैसे हैं हमारे, अराउंड द सेंटर एक्सिस हैं। अभी डिफरेंट एक्सिस हो जाएंगी तो हम क्या दे देंगे, एक थ्योरम देंगे, हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू डिफरेंट एक्सिस। अभी के लिए क्या है, सेंटर एक्सिस से पास करता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है मेरा, ml²/12। So these are some basic formulas that you have to remember for the questions। कि हमारे पास क्या आ जाता है, एक सॉलिड स्फीयर क्या कर रहा है, वो हमें रोटेट कराना है, हमें एक होलो सिलेंडर इज रोटेटिंग अलोंग द वेज, क्या कर रहा है हमारा डिस्क रोटेट कर रही है, रिंग रोटेट कर रही है, तो हम मासेस नहीं लेते हैं जब हम टॉर्क अप्लाई करते हैं, क्या लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो दिस आर द सम बेसिक फॉर्मूलाज फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शियाज। ठीक है, अब टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियर, हम एक बार इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं ऑफ दिस टॉपिक, एंड देन वील मूव ऑन टू द थ्योरम्स। हम अभी थ्योरम्स पे मूव ऑन करने वाले हैं। जल्दी से इलस्ट्रेशन से हम इसे और समझ लेते हैं। सेंटर ऑफ मास, देखो रोटेशनल मोशन में सबसे फर्स्ट टॉपिक वी हैव इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम उसकी इलस्ट्रेशंस देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट गिव मी अ सेकंड। इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपने लिखा है, यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स।
Pastels am I audible? Pastels am I audible? Yes. Okay. ठीक है. Sorry for the inconvenience. We'll start from here only. हमने सेंटर ऑफ मासेस के अराउंड क्या कर लिया था? हम क्वेश्चनर बाद में करते हैं. हम लोग सेंटर ऑफ मासेस के अराउंड क्या किया था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया था डिफरेंट रिजिड बॉडीज. फर्स्ट ऑफ यूनिफॉर्म रिंग, सेकेंड ऑफ अ डिस्क, होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, स्फीयर एंड अ सॉलिड स्फीयर. हम लोग ये 6-7 बेसिक क्वांटिटीज का क्या याद करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी हैव टू रिमेम्बर. नाउ डायरेक्ट फार्मूला का मतलब हम लोग फार्मूला आ भी सकता है और हम लोगों को यूज करना भी आना चाहिए कि हम कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बाद कैलकुलेट करेंगे. अब जैसे क्वेश्चन आएगा आपसे, आप डायरेक्ट उस सेंटर एक्सिस का नहीं पूछ के किसी और एक्सिस से पूछ लेगा, तो हमें क्या यूज करनी होती है? हमें एक्सिस थ्योरम्स यूज करनी होती है. क्या हमारे पास कितनी हमारे पास एक्सिस थ्योरम्स which helps us to find moment of inertia from different एक्सिस. जैसे अगर आपने ये क्या किया, ये सेंटर वाली एक्सिस के अराउंड, ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म रिंग थी एंड दिस सेंटर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. आपने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया है. वी नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a uniform ring from center of mass is mr square. अगर आपसे अपना क्वेश्चन पूछ लूं कि अगर आपको डिफरेंट एक्सिस से, आपको इस एक्सिस से ये वाली एम एक्सिस से पास करके फाइंड पूछना है, आपको ये इस एक्सिस से फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो ये क्या, दीज आर द पैरेलल एक्सिस. आपको एक एक्सिस से पता है, आपको पैरेलल एक्सिस से पूछ लिया, तो आप कौन सी एक्सिस थ्योरम लगाओगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम. कौन सी थ्योरम्स लगाओगे? पैरेलल एक्सिस theorems. Parallel axis theorem states that a movement of inertia through any parallel axis parallel to center of mass would be I center of mass plus mass of that body into d square. आप कौन सी एक्सिस की बात कर रहे हो? इफ देखो ये एक्सिस क्या है, d डिस्टेंस पे होती, तो इसके अराउंड क्या होता? I सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर. अगर अब मैं ये बोल रही हूँ मुझे ये टेंजेंशियल एक्सिस के थ्रू, जो ये कॉर्नर से पॉइंट पास कर रही है, इसके थ्रू चाहिए, तो ये देखो सेंटर से कितना दूर होगा? आर रेडियस अवे होगा. तो ये क्या हो जाएगा? आई पी इज इक्वल्स टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर. एंड सेंटर ऑफ मास यू नो कितना होता है? एम आर स्क्वायर होता है. एंड एम आर स्क्वायर अगेन कितना हो गया? 2mr square. The moment of inertia of a uniform ring around center of mass axis is mr square and around x this that is passing through its corner point tangential. अगर ये मेरा ये है सेंटर एक्सिस और इसे टच करते हुए पास करती है, तो क्या हो जाएगा? 2mr स्क्वायर. तो ऐसे आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के डिफरेंट एक्सिस के अराउंड क्या निकाल सकते हो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया यू कैन कैलकुलेट. अब जैसे अगर मैंने आप एक रिंग है आपके पास, you have a solid sphere, you have a solid sphere and आपके पास क्या है? आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास यू नो कितना होता है? इट्स 2/5 mr स्क्वायर. इट्स 2/5 mr स्क्वायर. तो इस एक्सिस के अराउंड अगर ये क्या होती, कोई मेरे पास ये एक्सिस है that is passing through this point P and another axis we have that passes through this point M. ये दोनों क्या है? मेरी पैरेलल एक्सिस है थ्रू सेंटर ऑफ मास. तो हमें आई पी कैलकुलेट करना था एंड आई एम कैलकुलेट करना था. एंड ये कितने डिस्टेंस पे था? r/2 डिस्टेंस पे. एंड ये सेंटर है और ये इसके क्या हो जाएगा? इसकी रेडियस हो जाएगी. तो कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? वी नो इट्स आई सेंटर ऑफ मास प्लस
md², यू नो सेंटर ऑफ मास 1 कितना है 2/5 mr², एंड m प्लस r²। ठीक है, देखो मास इंटू r² कितना हो जाएगा यहाँ से अब इक्वल्स टू 7/5 mr²। 7/5 mr² is the moment of inertia through this axis। अगर आप इस एक्सिस के अराउंड पता है, इस एक्सिस के आपने इजीली फाइंड कर लिया। m एक्सिस के अराउंड कितना हो जाएगा अगेन I सेंटर ऑफ मास I dm²। सेंटर ऑफ मास क्या है मेरा 2/5 mr² प्लस मास इंटू r/2²। आप इसे कैलकुलेट करो तो यहाँ से जो आंसर आएगा mr 2/5 mr² प्लस mr²/4, ये क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू दिस एक्सिस। ठीक है, अब देखो इसी एक्सिस का अगर मैं यहाँ पे इस थ्योरम का यूज यहाँ कर लेती, हम लोगों को सेंटर ऑफ मास वाली पता था, हमें सेंटर ऑफ मास वाली पता है, तो मुझे अगर एक इसके अराउंड पूछना होता तो ये मेरा सेंटर ऑफ मास होता, कितना दूर है L/2 अवे है, हमें पता है अब ml²/3 आंसर है। तो क्या मैं अब इससे कॉर्नर वाले का फाइंड कर सकती हूँ, यस सेंटर ऑफ मास प्लस md²। देखो यहाँ से ये कितना हो जाएगा ml²/12 प्लस ml/2², ml²/12 प्लस ml²/4, 12 ml² प्लस 3 ml², 4 ml²/12 कितना आ रहा है ml²/3। देखो यही आंसर था, हमने इसका अलग से डेरिवेशन भी किया था एंड वी हैव डिराइव्ड इट फ्रॉम यूजिंग एक्सिस थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको सेंटर ऑफ मास वाले का पता है तो हमें डिफरेंट एक्सिस के थ्रू कितना सेंटर ऑफ क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी कैन फाइंड। नाउ अब आपको सिर्फ सेंटर ऑफ मास वाली का याद रखना है, यू कैन फाइंड थ्रू डिफरेंट एक्सिस। अभी तो क्या थी हमने ली पैरेलल एक्सिस ले ली थी, अगर आपसे कोई परपेंडिकुलर एक्सिस का ले ले, जैसे आपके पास ये बॉडी है मेरी, ये बॉडी आपने ये वाला फाइंड कर रखा है, ये मेरा सर्कल है, इस सर्कल से इस एक्सिस के अराउंड इसको रोटेट कराना है तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। अगर मैंने पूछ लिया अब इस एक्सिस के अराउंड मुझे रोटेट कराना है तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगेगा, दैट इज मैं परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू पूछ रही हूँ आपसे, तो वी कैन अप्लाई आवर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बट इसकी एक लिमिटेशन है, ये थ्योरम हम सिर्फ प्लेनर बॉडीज 2D बॉडीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हम 3D में नहीं जाएंगे। अगर जैसे ये क्या है मेरा, इफ आई हैव अ बॉडी एंड आपको ये आई ओ वाला मींस इस एक्सिस जेड एक्सिस, अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो इसकी परपेंडिकुलर जेड एक्सिस हो जाएगी, तो आपको ये आई जेड वाला पता है, आई एम सेइंग दिस इज आई जेड जो अंदर की साइड से आ रहा है आप, तो हमारा आई एक्स, अगर ये मेरा आई वाई है, ये मेरी वाई एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये मेरी एक्स एक्सिस है इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनके बीच में क्या रिलेशन रहता है, फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वी कैन से आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू आई जेड। जो मेरी ये कौन सी एक्सिस होंगी, मेरी प्लेन एक्सिस होंगी, प्लेनर एक्सिस होंगी, जो एक्सिस मेरी क्या है प्लेन में है, एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बॉडी। ठीक है, ये क्या होगा, अगर मैंने आपको बॉडी दे दी है किस में रखी है एक्सजेड प्लेन में रखी है, तो यहाँ पे ये थ्योरम कैसे यूज होगी, जो मेरी प्लेन में थ्योरम प्लेन में एक्सिस है आई एक्स प्लस आई जेड, और जो इनके एक परपेंडिकुलर होगी वो कौन सी होगी आई वाई। तो ऐसे हम क्या यूज करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मुझे आईओ वाला पता है, अब मुझे सेंटर वाला परपेंडिकुलर टू द प्लेन मुझे सबके पता है जो हमने लिखे थे, आई एक्स एंड आई वाई पूछ रहे तो हम क्या यूज करेंगे, इस थ्योरम का यूज करेंगे। जैसे अगर अब मैंने ले लिया एक यूनिफॉर्म रिंग ले ली, हम 2D एक्सिस में ही बात करते हैं, वी हैव टेकन अ यूनिफॉर्म रिंग, हमने क्या ले लिया है यूनिफॉर्म रिंग ले लिया है ऑफ रेडियस r एंड मास n। आपसे अगर ये क्या है, ये किस प्लेन में रखा है, इसे हमने एक्स वाई प्लेन में रखा था, अब मैं बोल रही हूँ मुझे इसको इसके अराउंड घुमाना होता, जैसे सेंटर ऑफ मास और जेड प्लेन में ये क्या करें इसके अराउंड घुमाना होता, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता, आई एक्स कितना होता, तो यू नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास जो क्या है उसके परपेंडिकुलर जा रही है, तो आई जेड आपको पता है
कितना होता है, mr स्क्वायर होता है। अब आपको किसका फाइंड करना है, आई एक्स का फाइंड करना है। तो वी हैव टू यूज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू आई जेड। बट अब यहाँ तो दो वेरिएबल्स हैं, आई एक्स भी नहीं पता, आई वाई भी नहीं पता। पर देखो ये कैसी बॉडी है मेरी, सिमेट्रिक बॉडी है। मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस एक्सिस के अराउंड देखो, ये एक्स एक्सिस के अराउंड सेमी रिंग है, सेम मास होगा, नीचे सेम मास होगा। अगर मैं ये वाई एक्सिस ले लेती हूँ तो यहाँ भी एक सेमी रिंग है, यहाँ भी एक सेमी रिंग है। यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन है। फॉर सिमेट्रिक बॉडीज ओनली आई कैन राइट आई एक्स इज इक्वल्स टू आई वाई फ्रॉम द मास डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें अगर मैं ये पुट कर दूं तो आई हैव 2ix is equals to iz एंड मेरा ix कितना हो जाएगा, ix मेरा हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 2। ix कितना हो गया, mr स्क्वायर बाय 2, और यही क्या होगा मेरा आई वाई। सो दिस इज द मेथड टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी थ्रू डिफरेंट एक्सेस। हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस लेते रहेंगे तो कैसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट बॉडी मैंने ले ली रिंग, अब डिस्क ले लिया, अब हमने क्या ले लिया, डिस्क ले लिया। अब इस डिस्क से आपको क्या फाइंड करना है, एक्स, ये हमने कहाँ रखा है, वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में रखा है। और आपसे क्या पूछ लिया है यहाँ पे, आई वाई बता दो, आई वाई मेरा कितना होगा। तो यू नो कि रिंग से जो परपेंडिकुलर एक्सिस पास करती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, यू नो उसका कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर बाय 2। ये कितना है, डिस्क, आपको डिस्क का मैंने याद कराया था, डिस्क का आर स्क्वायर बाय 2। आपसे आई वाई पूछा है, आई वाई प्लस आई जेड कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। अब डिस्क भी क्या है मेरी, सिमेट्रिक है, सेंटर ऑफ एक्सिस क्या है, सिमेट्रिक है, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा। तो आई नो अब कितना हो जाएगा ये, एम आर स्क्वायर बाय 4। इस एक्सिस के अराउंड क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है, एक आपसे इसी में एक्सटेंड कर दे क्वेश्चन, ये वाली एक्सिस नहीं, ये एक्सिस के अराउंड बता, जो मेरी क्या कर रही है, ये किसके अराउंड, डायामीटर के क्या है, पैरेलल टू द डायामीटर, इस एक्सिस के अराउंड बताओ। तब आपको आई वाई पता है और ये क्या है, इसके पैरेलल है, और कितने डिस्टेंस दूर है, r डिस्टेंस दूर है। तो इस एक्सिस को मैं नाम दे देती हूँ आई एम एक्सिस। ठीक है, आई एम एक्सिस क्या हो जाएगा मेरा, आई वाई प्लस एम डी स्क्वायर। अब आपने कौन सी थ्योरम लगा दी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी। तो कितना है, एम आर स्क्वायर बाय 4 है, प्लस एम इंटू आर स्क्वायर 5 एम आर स्क्वायर बाय 4, कितना है 5 एम आर स्क्वायर बाय 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपसे अब कितनी कोई भी एक्सिस से क्या पूछे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे ऑफ दैट बॉडी, you can calculate. You just have to remember some basic formula. First formula for the moment of inertia, then how to apply it for the discrete bodies, system of particles, but discrete system of particles. And फिर हमें continuous bodies पे वो चीज क्या कर देंगे, हम अप्लाई कर देंगे ज्यादा। ठीक है, I'll give you one question to solve now. One thing more. ठीक है, अब ये क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है मेरा, एडिटिव इन नेचर होता है। क्या होता है, एडिटिव इन नेचर होता है। जैसे अगर मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मेरा क्वेश्चन है, एक यूनिफॉर्म रॉड है, मास m, लेंथ l, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अराउंड एक मास m का, ठीक है, मास m एक स्फेयर रखा हुआ है, स्फेयर है, और यहाँ क्या है, ये मेरी एक डिस्क रखी हुई है यहाँ पे। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दीज बॉडीज, अब मेरे इस बॉडी, अब तीनों बॉडीज ऐसे रखी हुई हैं, अब मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेयर, उस एक्सिस, एक स्फेयर का, इस स्फेयर का इस एक्सिस के अराउंड, एंड आई ऑफ दिस। ऐसे ही आप अगर यहाँ पे मेरी क्या होती, ये एक्सिस होती, इसके साथ एक रॉड पहले m1 रॉड लगी होती, फिर एक दूसरी रॉड लगी होती ऑफ मास m2, और ये क्या होता है, इसके एक्सिस थी मेरी। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता,
रॉड 1 का प्लस रॉड 2 का। पर ये ध्यान रखना रॉड 2 का लिखते टाइम, जैसे अब मैं क्वेश्चन ले ही लेती हूँ। ये एक्सेस है, ये मेरा है m1, लेंथ L1, क्या है मास m2, L2 लेंथ L2, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए मुझे। तो देखो क्या होगा, वी हैव टूल्ड कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी है, मेरी एडिटिव क्वांटिटीज हैं ये। क्या करेंगे, रॉड 1 का ऐड करेंगे, रॉड 2 का ऐड करेंगे। अब देखो रॉड 1 का इसके एक्सिस के राउंड, रॉड का है कहां से निकाला, ये कॉर्नर से है, तो इसका क्या हो जाएगा, इट वुड बी m1 L1 स्क्वायर बाय 3। ठीक है, अब इस रॉड का आपको किसके थ्रू चाहिए, इसके थ्रू चाहिए। आपको इस एक्सिस के अराउंड पता है, इस एक्सिस के अराउंड कितना है होगा, m2 L2 स्क्वायर बाय 3, ये इस एक्सिस के अराउंड होगा। अब इसमें ये ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, आपको पैरेलल, बिकॉज इस एक्सिस के अराउंड आपको इस रॉड का पता है, पर हमें तो किसका चाहिए, इसी एक्सिस के अराउंड चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जब हम क्वांटिटी ऐड करेंगे, प्लस नीचे लिख देती हूँ मैं यहाँ पे m2 L2 स्क्वायर, ये इसके अपने कॉर्नर से अराउंड है, प्लस पैरेलल एक्सिस लगाना पड़ेगा m2, और लेंथ कितनी दूर है, L1 डिस्टेंस पे है, तो m2 L1 स्क्वायर। सो दिस इज द नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। अगर हम डिफरेंट रिजिड बॉडीज लगाते जाएं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय एडिंग टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अराउंड ही लेना है हमें, हमें इस एक्सिस से उसी एक्सिस के अराउंड पे। ठीक है, अगर अब मैं आपको इसी का एक ऐसा ही क्वेश्चन दे देती हूँ, प्लीज ट्राई दैट क्वेश्चन। ठीक है, similar to this I am giving you one question, you have to find moment of inertia of bodies। ये हमारे पास है, यहाँ पे ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन, this is my axis of rotation, and mass of this rod is 2 kgs, and length is mass is 3 kgs, and length is 2 meters। ये मेरी फर्स्ट रॉड हुई है, एंड यहाँ पे एक और रॉड लगी हुई है, mass is 6 kgs and length is 3 meters। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी, इस पूरी बॉडी का इस एक्सिस के अराउंड कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, आप वो कैलकुलेट करके बताओ। तो आपको क्या लगाना है, रॉड 1 का लगाना है, रॉड 2 का लगाना है, बट कौन से एक्सिस के अराउंड, इसी एक्सिस के अराउंड आपको फॉर्मूलास लगाना है। टेल मी द आंसर, यू कैन कैलकुलेट नाउ। रॉड का आपको लिख के रखा हुआ है ml स्क्वायर बाय 3 होता है कॉर्नर एक्सिस के अराउंड, एंड आपको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यू हैव टू फाइंड ऑफ दिस कंपोजिट मास, जिसके रॉड्स हैं 3 kg एंड meters and 3 meters respectively। Calculate moment of inertia, and I want everyone to answer. You can take 2 or 3 minutes, but you need to answer in the chat box. These are the basic questions that can be asked, and इससे अलग से भी क्वेश्चन आता है, आ सकता है, there is a probability इस टॉपिक से सिंगल क्वेश्चन का। this topic would be helping you in whole movement of whole rotational dynamics. Try to find the answer.
Okay, I get one answer, 46 kg meter square. यूज नहीं करना है हम लोगों को इसको अलग से करना है। ये तो इसमें क्या थी, हमारे पास दो कंपोजिट बॉडीज थी और दोनों अलग अलग यहाँ लगी हुई थी। यहाँ क्या होगा, देखो, इस रॉड वन का, जो मेरी रॉड वन है, इसका क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हमारा, m1 L1 स्क्वायर बाय 3। ये वाली रॉड भी अब इसी के कॉर्नर से ही तो है, ये भी इसी के कॉर्नर पे ही है, क्या हो जाएगा, m2 L2 स्क्वायर बाय 3। ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे तो ये वाली बॉडी का हमें इस एक्सिस के अराउंड पता था और हम पैरेलली किसी और के अराउंड फाइंड कर रहे थे। यहाँ तो हम इसी के अराउंड फाइंड कर रहे हैं। तो देखो, मास 1 इज 3 kg, L1 इज 4, L1 स्क्वायर 4 हो जाएगा 3, प्लस m2 इज 6 इंटू 9/3, so it would be 4 plus 18, that is 22. ठीक है, आई थिंक जिसने आंसर दिया है शाबीना का, मैं हमारे एडेड दिस। ठीक है, आपने क्वांटिटी भी हाँ ऐड कर दिया है, करेक्ट, नाउ यू हैव गिवन द राइट आंसर। हम लोगों ने, वो क्वेश्चन डिफरेंट था, वो क्वेश्चन एक्सिस के अराउंड हमें क्या देखना होता है, बस एक्सिस के अराउंड वो कैसे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शियस देखी। तो इसका तो हमने ml1 ये सेम ही रखा था। अब इसके अराउंड हम लोगों ने ये वाली एक्सिस का हमें पता था एंड हमने इसमें ये वाली एक्सिस का जोड़ दिया है। तो दिस इज हाउ वी कैन, ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व मोमेंट ऑफ इनर्शियस। अब देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता चल गया है। अब मतलब बॉडी इनर्शिया जो प्रोवाइड कर रही है हमें उनकी वैल्यूज पता है। अब मुझे किसी भी बॉडी को क्या कराना है, एक्सिस के अराउंड रोटेट कराना है, तो मुझे क्या लगाना पड़ता है, मुझे एक फोर्स, फोर्स नहीं लगा, फोर्स से तो बॉडी क्या करती है, ट्रांसलेशनल मोशन। मुझे इसे रोटेट कराने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, इसे रोटेट कराने के लिए, इसे एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए क्या प्रोवाइड करना होता है, टॉर्क। ठीक है, टॉर्क होता क्या है, इट इज F×R, F/R साइन थीटा। मीन्स आपको क्या देखना है कि आपने फोर्स F लगाया, इस बॉडी पे क्या लगाया, फोर्स F लगाया इस एक्सिस से R डिस्टेंस अवे, तो ये बॉडी इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस बॉडी को फोर्स लगा के रोटेट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं। तो ये क्या लगा रहे हैं हम, टॉर्क क्या होगा, टॉर्क इज F×R, F/R साइन थीटा। एंड टॉर्क बॉडी को कैसे प्रोवाइड करता है, ये क्या हो गया, दिस इज हाउ टू कैलकुलेट टॉर्क। आप क्या ले सकते हो, आप ले सकते हो R इंटू नॉर्मल, R इंटू यहाँ पे क्या आता है, ये वेक्टर, फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, R भी वेक्टर क्वांटिटी, तो ये क्या होता है, हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, एंड यहाँ से वी नो, अगर ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड इज गिवन, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आर एंड साइन थीटा। ठीक है, अब ये टॉर्क हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, टॉर्क इज प्रोवाइडिंग मी द एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन जैसे हमारा न्यूटन सेकंड लॉ था, टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू ए। यहां से अगर मैं लिखना चाहूँ तो हमारा क्या होगा, अगर बॉडी को हमें क्या प्रोवाइड करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना है, एंड उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I, तो टॉर्क किसके इक्वल हो जाता है मेरा, I अल्फा के। ठीक है, देखो, मास एनालॉगस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए एनालॉगस क्या होता है हमारा, एंगुलर एक्सेलरेशन, फोर्स एनालॉगस क्या है हमारे पास, टॉर्क।
तो टॉर्क इज इक्वल्स टू माई आई अल्फा। वी कैन ऑल्सो प्रूव दिस कि ये आया कैसे, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, बट यू हैव टू रिमेम्बर कि अगर किसी बॉडी को हम रोटेशनल मोशन में लेके जाते हैं तो हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, एक टॉर्क प्रोवाइड करना होता है। दैट इज, वो क्या करता है, टॉर्क बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे आपको इसके बारे में तो हम पता कर चुके हैं, अब हम अल्फा एक बार डिस्कस करते हैं एंड देन मूव टू टॉर्क। आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, डिस्क है तो अलग हो जाएगा, रिंग है तो हम डिफरेंट लेंगे, सिलेंडर है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट। अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, देखो अब तक हम लीनियर की बात करते हैं, अब हम एंगुलर की बात करने लग जाते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर मेरी बॉडी पार्टिकल यहाँ है, इन टाइम टी इसने क्या किया, इन टाइम टी इसने एक थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। देखो लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी ऑल्सो नो क्या हो जाएगा, आर इंटू थीटा हो जाएगा, पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा, हमारा थीटा रेडियंस में, इसकी SI यूनिट वुड बी रेडियंस। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है हमारा, चेंज इन थीटा विद पर यूनिट टाइम। अब ये मेरा थीटा धीरे धीरे, अगर ये क्या हुआ, पहले टाइम t1 में 2 मीटर पर सेकेंड इससे मूव कर रही थी, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, फिर 3 से मूव करने लग गई, दैट मीन्स इसके पास क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये क्या होगा, चेंज इन इट्स एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो सारे हमारे एनालॉगस टू लीनियर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, आई हैव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नाउ, वेलोसिटी के एनालॉगस आई हैव ओमेगा, एस ए के एनालॉगस आई हैव अल्फा। तो जो हम चीजें मोशन में यहाँ पे क्या लगाते थे, हम लोग 3 इक्वेशन लगाते थे, यहाँ भी वी कैन अप्लाई दोज इक्वेशन। देखो फर्स्ट इक्वेशन, रिलेशन ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 into अल्फा थीटा, v omega final is equals to omega initial plus alpha t, theta is equals to omega I t plus half into alpha t square। देखो सारी चीजें किसके एनालॉगस हैं, काइनेमैटिक के एनालॉगस हैं। s is equals to ut plus half at स्क्वायर होता था, तो हमारे पास u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई, टाइम टी, टाइम फ्रेम तो चाहे रोटेशनल मोशन करे ट्रांसलेशनल मोशन करे, टाइम तो हमारा सेम है, प्लस हाफ लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन सेम, यहाँ क्या था, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी था, एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर क्या था, 2as के इक्वल था। तो तीनों में मैंने क्या लगा दिया है, यहाँ पे आई हैव अप्लाइड सेम इक्वेशंस, जैसे हम लोगों ने मोशन में सारी चीजें डिफाइन करी थी, here also we have defined the same things, you can note this down। तो फॉर डिफाइनिंग मोशन, जैसे मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए वी हैड टू डिफाइन 5 पैरामीटर्स, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, speed and accelerations. For defining rotational motion, we have also defined angular displacement, angular velocities, angular accelerations, and uh, these are 3 equations of which we use in kinematics, which relates the all these parameters। पर ये parameters कब तक हम लोग कब यूज कर सकते हैं, when we have a constant। यहाँ भी हमें थीटा वाली कब यूज कर सकते हैं, when we have our angular velocity as constant। So these are the methods। आप क्या कर सकते हो, ये पैरामीटर डिफाइन कर सकते हो फॉर अ बॉडी टू मूव इन अ रिजिड बॉडी। अब हमें क्या के बारे में स्टडी, had to study about torque। जैसे हमने फोर्स के बारे में इंडिविजुअल स्टडी किया था, अब हम क्या करने वाले हैं, we had to study about torque, but we have only left with 10 minutes, 5 4 minutes।
So we will start torque in the next class. But today we have done first very important topic of rotational body, that is moment of inertia. If you have any doubts on moment of inertia, you can ask. Okay, these are the formulas that you have to remember now. ये क्या है, हमारे कुछ formulas हैं, इनकी list अगर आपने नहीं लिखी है तो you can note this down. These are some basic formulas. अगर आपने बोल दिया कि वहाँ पे body solid sphere roll कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए उसका मास नहीं, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना होता है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2/5 mr स्क्वायर. ये शीट आप नोट कर लो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स. आई एम वेटिंग. And all the best to all the students who are preparing for mains, and especially for the students who are preparing who have exams. Any doubts, class 12th? If no doubts, then we'll be ending today's session. In the next class, we'll be starting torque. And we'll complete the chapter rotational dynamics in 3 classes, but this is one of the most important chapter. If you are going for the first attempt, you should revise this chapter in physics. Okay. If no doubts, then I'll be ending the class. Bye, everyone.